Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you are doing beautiful and you're doing very well in your studies as well as in your life. My name is Sonika Seni and today I have brought a different kind of a video, especially if you're a UPSC aspirant and have been in the journey for let's say for more than 2 years. So I just want to put a little disclaimer for you all of you. Just a minute. I try to give you a little disclaimer always, whenever I bring a different kind of a video, so that you don't think कि भाई ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है. The disclaimer is that we are here to guide you, है ना, emotionally, academically, है ना, so that you don't feel directionless. And this video is not about selling our courses. This video is not making minting money out of it. This video is not about enticing you कि भाई हमारे courses ले लो. No, not at all. Because I felt emotionally for this video and I felt that there are so many aspirants in the journey that they feel that there is no direction, कोई रास्ता नहीं है. हम यूपीएससी की जर्नी में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता फॉर एटलीस्ट 4 years कि हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद कैसे करना चाहिए, क्या कोई और एग्ज़ाम है, शुड वी go towards our family business or any kind of another startup or should we pursue our masters, बहुत सारे thoughts mind में जाते हैं. Also, I want to say that we have been in talking terms with so many UPSC aspirants who are preparing for exams like RBI and NABARD and also with the selected candidates. And उनका सबका एक ही कहना था कि हमें RBI NABARD के एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था. We got to know late and we were not aware और काश हमें 2 साल पहले पता चल जाता. And same happened with me also. I started my UPSC journey and post that 4 years बाद मुझे अपने एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता चला and then I started preparing for NABARD and other regulatory bodies as well, right? So this video is just to basically guide you that if you are in the journey and you feel anxiety, you feel panic, there are a lot of pressures in your life, what shall be done? And if you think that आपको ये चीज़ करनी चाहिए, then what shall be the proper you can say guide or the ladder कि step by step मुझे इस चीज़ पे कैसे जाना है, क्या मतलब ठीक है. So we will be discussing it very holistically कि किस तरीके से ये चीज़ होगी, है ना, कैसे होगी, कब होगी, है ना, हम इसको थोड़ा सा होलिस्टिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो माय फर्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट्स दैट डोंट पुट ऑल योर प्रिपरेशन on one result, multiply it. I have seen many experience including myself that हम एक एग्जाम में इतनी जान लगा देते हैं but when we have another options, आजकल तो हमारे पास options इतने सारे हैं, है ना, हर चीज़ के, चाहे वो कोई भी resources लगा लो, then why you can't multiply, है ना, whatever your knowledge base is, why not to add them in other exams as well, right? Okay. So I do understand that you need a backup plan, है ना. शायद ये 4 साल बाद समझ में आया आपको. Why not to have this? People are smarter nowadays. I believe that aspirants are really, really smarter nowadays. They think of having a backup plan after 2 years. They don't wait for me कि भाई 4 साल है, कुछ तो करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे. तो why? See, there is a financial pressure. Everyone knows that financial pressure है, right? Social pressure है, societal pressure है. हमें नहीं पता क्या क्या चलेगा ज़िंदगी में, कैसे होगा. Then there is a age pressure also, है ना. As we turn out after our 25 28 के बाद में हमें एक एज प्रेशर भी आने लगता है कि ओ माय गॉड शादी होगी, फैमिली प्रेशर होगा, फिर ऐसे होगा, मैं तो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, राइट. देन देर इज़ दिस टोल मेंटल हेल्थ, राइट. देर इज़ फेलियर्स, फियर्स एंड आई जस्ट नो दैट देर इज़ अ सो मच प्रेशर मेंटली, है ना, बेसिकली इंटरनली ऑल्सो, एक्सटर्नली ऑल्सो, पीयर प्रेशर ऑल्सो. पोस्ट दैट हमारे जो है कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाती है ना, जब हम 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं. लेट्स से हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला, अगले साल प्रीलिम्स निकला, देन यू हैव रिटन मीन्स, तो हमारी कॉन्फिडेंस इतनी लो हो जाती है, नो मैटर व्हाट, कि हम कॉलेज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एकेडमिकली वी वर टॉपर, है ना. तो इट्स लाइक कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डिरेल हो जाता है दैट यू डोंट नो दैट व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू just make a eye contact with people who are just clearing or doing well in their life, whether we see everywhere around, right? So मुझे ऐसा लगता है कि फिर क्यों ना हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि so that you are not into this journey in this particular loop, right? ये सब आपको ऑलरेडी पता था, just to this. तो when we prepare for exams like RBI and NABARD, है ना, there is a certain question, जो बच्चे 1 second usually बोलते हैं कि अरे यूपीएससी की तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है ना, और आरबीआई की बहुत कम आती है. सो यू जस्ट कंपेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, right? There are 13 lakh applicants in UPSC, whereas vacancies is 1087. It is as per the latest notification, right? Whereas in RBI it is 1.07 lakh applicants and 83 vacancies, and in NABARD it was just 52,000
and there were 50 vacancies. But if you see the selection percentage, it is almost the same, है ना, it is almost the same. So we don't have to see कि भाई vacancy किसकी ज़्यादा है, applicants किसके ज़्यादा है, क्योंकि selection rate तो same ही है ना. So I don't think there should be a pop-up question in your mind कि अरे इसकी तो vacancy ज़्यादा है. So let's say even if you clear UPSC and सबका ड्रीम होता है कि मुझे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस यानी कि हमें ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है या ग्रुप ए में जाना है. बट आपको भी पता है ओनली 150 या टॉप 200 को ही आईएएस, आईपीएस या आईआरएस मिलता है ना. आई एम नॉट सेइंग ओके आई विल माय नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दिस ओनली. ठीक है कि भाई मैं आरबीआई नाबार्ड क्यों करूं, मेरा तो सपना यूपीएससी था. मैं अपने ख्वाब, मेरे सपने, मेरे माँ बाप की आस, मेरे बचपन का सपना, मेरे स्कूल कॉलेज का सपना मैं क्यों छोड़ूं से. सो आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर when I was making the PPTs, right, I was also preparing UPSC plus NABARD. Frankly speaking, I didn't leave UPSC, right? So basically, we are not asking you to stop chasing your dreams. You are not asking कि भाई UPSC छोड़ दो. We are just asking you to integrate your preparation for RBI, for NABARD, and for that matter, any kind of, let's say you are interested in any kind of examination, है ना. So with UPSC, है ना, उसके साथ आप UPSC के साथ 2-4 घंटे या 4-5 घंटे अगर आप UPSC के साथ दे देंगे, तो you will have a backup plan that if not this, I have this, if not this, I have this, right? So in that scenario, what will happen that कहीं ना कहीं आपके, let's say NABARD, लेट्स से यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है 2 साल से, बट लेट्स से आपने नबार्ड का प्रेप किया, आरबीआई का प्रेप किया और आपका प्रीलिम्स निकल जाता है. इट वुड गिव यू अ बूस्ट इन योर लाइफ दैट यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, आई विल डू इट, है ना. तो दैट इज व्हाट मैटर्स कि जैसे जैसे हमारा फॉर लेट्स से इट्स अ साइकिल ऑफ 6-7 मंथ्स, तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है. एंड देन आपको जो पावर बूस्ट मिलेगा लाइफ में कि अगर मैंने ये निकाला है तो मैं डेफिनेटली यूपीएससी भी निकाल सकता हूँ या सकती हूँ. And then you can prepare after RBI and NABARD as well, because since the work-life culture is so soothing over there, Hannah, especially in NABARD, and then you can prepare. Besides, you get the holidays in the training period and all of that. You can prepare for UPSC, so you don't have to leave UPSC for that matter, Hannah. Then अच्छा एक बात और, हमें पता है कि यूपीएससी की जो एज क्राइटेरिया है दैट इज राइट 33 years फॉर जनरल कैटेगरी, वेयर एज इन आरबीआई नाबार्ड इट इज 30 years. तो द क्लॉक इज टिकिंग, राइट. आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ पैनिक. सपोज you are 27 years old, you have 3 years, right? But for UPSC you have 6 years, right? So in RBI NABARD, then it means that you have to think early, you have to take actions early, you have to take the decision, है ना, early. Then when it comes to educational criteria, it's basic bachelor degree with a minimum of 60%, whereas it is for 55%, right, SC, STs and PWD categories. Just trying to mention that you just need a normal graduation. कुछ लोगों को idea नहीं होता कि अगर RBI है तो हो सकता है management, commerce, finance इन सब में degrees चाहिए होगी. You just need a general graduation for the general stream. ठीक है? Now, so but when one should prepare? ठीक है? अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें प्रिपेयर कब करना चाहिए, है ना. क्या मुझे 1 साल बाद प्रिपेयर करना चाहिए, 1.5 साल बाद. सी आई वुड आइडियली रिकमेंड, है ना. इट्स नॉट rule, it's not a rule, है ना. It's just a something which is based on my personal experiences. It's not a like rule जो एक rule book में लिख दिया और ऐसे ही follow करना है. आप जब चाहे आप वो चीज़ कर सकते हैं, है ना. Maybe 3 years, maybe even after 1.5 years. But I personally believe that if you have done a dedicated, I don't know. So if you have done a dedicated, I thought that why I'm holding a pen when I'm not writing anything. Should I write something for you or not? So I thought कि ठीक है. So I don't want to make it कि completely पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है. It's like a chit chat, it's like a conversation with you all. So yes, one should prepare. So what was I saying, that if you think that कि हमने 2 साल अच्छे से dedicatedly, ठीक है, mind this word, preparation की है, and you feel that कि भाई अब तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा, अब मुझे कुछ और चाहिए, मैं यूपीएससी पे रिलाई नहीं कर सकता या कर सकती, इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ टू मच कॉम्पिटिटिव, मेरे से तो सीसैट नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूँ या कैसे करूँ. ठीक है. तो यू शुड आफ्टर 2 years यू शुड स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, यू शुड स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस अबाउट योर लाइफ. ऑल्सो डू वन थिंग दैट इन आपके जो पास प्रेपरेशन है प्रीलिम्स के, तो आप क्या कीजिए, मार्जिन मार्क्स वर्सेस द एक्चुअल कट ऑफ, राइट. सपोज द कट ऑफ इज लेट्स से 80, है ना. आजकल यूपीएससी की इतनी जा रही है, लेट्स से इट इज 85 एंड यू आर गेटिंग इन द रेंज ऑफ राइट 70 to 85 के बीच में. बट तो ठीक है, आप ऑब्वियसली आपको कंटिन्यू करना चाहिए यूपीएससी विद अदर एग्जाम्स, राइट. बट लेट्स से यू आर गेटिंग 40 मार्क और 50 मार्क, देन यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्स एज वेल, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गेटिंग इन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2 बार प्रीलिम्स में मैं हर बार 2.69 मार्क्स से रही हूँ. तो मुझे पता चल जाता है कि येस आई एम
कैपेबल इनफ, एंड इट्स नॉट दैट देर आर लेसर, यू हैव आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो कम है, इट इज़ नेवर अबाउट द कैपेबिलिटीज, ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि द कॉम्पिटिटर इज मोर हार्ड वर्किंग देन यू, ही इज मोर स्मार्ट, ही शी इज मोर स्मार्ट, ठीक है। तो वो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिकली आप उस रेंज में थोड़े से नीचे आ जाते हो, नॉट ट्राइंग टू डीमीन बट दैट इज द रियलिटी, राइट। So it's not that कि आपकी कैपेबिलिटीज कम है, it's just that the competitor is more smarter than you, right? So analyze yourself versus the competitor, that's what I just said. Then resources and support, that means कि आपके पास support है आपकी family का, don't have any kind of stress about your age, you have a resources, basic backup, financial thing कि ये चीज़ नहीं होगी तो I do have a family business, ये चीज़ नहीं होगी तो I can have a startup, ये चीज़ नहीं होगी तो I can go for MBA। बट वो चीज़ अगर आप देखिए आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे डेडिकेटेडली 2 साल और प्रेप करना है कंबाइनिंग यूपीएससी विद अदर एग्जाम्स, देन यू शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बट हाउ, राइट। चलिए मैंने सोच लिया, मैम ने तो बोल दिया कि चलो कि ऐसा करना है, बट होगा क्या? सो इट इज़ अबाउट प्लान फर्स्ट, राइट। प्लान कीजिए अपने आइडिया को, अपने शेड्यूल को, कि अगर मुझे दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने आवर्स किसको देने हैं, कितना टाइम किसको डिवोट करना है। यूपीएससी के स्टूडेंट हो, बताने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, ठीक है। सो हाउ टू इंटीग्रेट बोथ द एग्जाम्स एंड डिवोट हाउ मच टाइम, देन सी द सिलेबस। कुछ सिलेबस मैं आपके लिए वैसे लेके आई हूँ, ठीक है। लास्ट के पीपीटीज में we will be discussing with the syllabus. See the syllabus, similarity and differences, ठीक है। There are a lot of similarities between UPSC and the RBI and NABARD, first of all. Secondly, there are certain differences, और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सब अच्छा अच्छा बताऊंगी, I will tell you the बेसिकली थिंग्स जो आपको अपने आप को यहाँ पे शार्प करनी पड़ेगी, बिकॉज यूपीएससी में वो नहीं चलता है। सर द डिफरेंसेस एज वेल, ऐसा नहीं है कि द जर्नी इज गोइंग टू बी एज स्मूथ, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट यू ऑलरेडी नो, राइट, वर्सेस व्हाट यू नीड टू नो, राइट। जब हम सिलेबस देखेंगे हम ये बताएंगे आपको कि क्या आपको ऑलरेडी पता है एंड क्या आपको पता करना है। एंड चेंज द शेड्यूल, टाइमिंग एंड एक्स्ट्रा आवर्स, कि भाई ये शेड्यूल है, मुझे इतना टाइम इसको देना है, इतना एक्स्ट्रा आवर्स देना है, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Do I have edge in these exams? So देखिए, if you are an UPSC aspirant since 2 years, you have a lot of edge, trust me, on any part, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सिटिंग आवर से रिलेटेड हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड हो, चाहे उसने अपनी सोशल मीडिया को बिल्कुल कट किया हुआ है ना, चाहे वो फोकस्ड है, चाहे कोई भी रीज़न हो, देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी लर्न इन दिस एंटायर जर्नी, और वो हमें इतना चेंज कर देती है कि देर इज़ नो लुक बैक, राइट। सो येस, राइटिंग आंसर्स, ठीक है, यू आर सो मच गुड एट राइटिंग आंसर्स, यू आर हैबिचुअल टू डू इट, ठीक है, you are creative in writing answers. Then syllabus is overlapping, again I will repeat that we will be discussing that concepts already cleared. जब मैं यूपीएससी से नबार्ड में आई थी, राइट, आई रॉट आरबीआई, ठीक है, आई रॉट नबार्ड, सो जब आई रॉट सेबी ऑल्सो ट्वाइस, सो आई जस्ट वांट टू से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे तो ये सब सारी चीज़ें पता है, इट्स जस्ट दैट आई नीड टू क्रैम सर्टेन थिंग्स जो एग्जाम रेलिवेंट है या एग्जाम में पूछी जाती है। तो मुझे ऐसा याद है कि आई थिंक मैंने नबार्ड का 1 महीने में प्रेप कर डाला था, बिकॉज आई नो आई वॉज एबल टू डू अ लॉट ऑफ सिटिंग आवर्स थे, मेरे को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पता थे। इट वॉज जस्ट दैट कि मुझे चीज़ें क्रैम करनी थी, और मैंने 1-1.5 महीने में ही नबार्ड प्रीलिम्स क्रैक कर दिया था, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो यस, तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर्ड, राइट, कॉन्सेप्ट्स वर ऑलरेडी क्लियर्ड, राइट, मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। सिटिंग आवर्स एंड टाइम डिविजन ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, देन डेफिनेटली यू हैव एज इन दीज एग्जाम्स, ठीक है। पोस्ट दैट व्हाट इज न्यू दैट नीड्स टू वॉक अपॉन। तो चलिए कुछ रियलिटी चेक भी हो जाए कि भाई ये आरबीआई नबार्ड की इतनी बात कर रही है, ऐसे भी क्या बात हो गई, क्या इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें नहीं आता हो, वही बहुत है। 2-4 चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो 2-4 चीज़ें आपको बतानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांट एंड रीजनिंग। यूपीएससी के अंदर जो क्वांट एंड रीजनिंग आता है, दैट इज क्वाइट एनालिटिकल, है ना, नंबर सिस्टम्स पे जोर दिया जाता है, इट इज क्वाइट एनालिटिकल, यू हैव टू थिंक एंड मेक क्वेश्चंस, राइट। बट हेयर जो क्वांट एंड रीजनिंग है, इट इज अ मोर ऑफ अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जबकि आपको पता है यूपीएससी में स्पीड पे ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता, ठीक है, इन द सी सेट, राइट, एंड इट इज क्वालिफाइंग, यस, वेयर एज इन दिस इट इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, मतलब जितना फास्ट आप क्वेश्चन करेंगे यू हैव अ ग्रेटर एज, ठीक है। तो फॉर पीपल लाइक मी, ठीक है, जिसका क्वांट थोड़ा सा वीक है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, तो जस्ट लेटिंग यू नो,
right? So in reasoning, it is also a speed-based test, right? Where you have to solve the questions very fast, right? और आपका जो एग्जाम होता है दोनों का, it is a ऑनलाइन स्क्रीन, यानी कि इट्स नॉट पेन पेपर जैसे हमें यूपीएससी में आदत होती है। तो जैसे ही मैंने ट्रांजिशन किया, शुरू में इश्यूज आए, है ना, 2-4 मॉक्स लिखे, 5-6 मॉक्स लिखे, बारी एक बार एग्जाम दिया, देन आई गॉट कंफर्टेबल। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही किसी चीज़ में जाओगे तो एकदम से आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, थोड़ा सा तो स्ट्रगल होगा कि भाई मुझे पेन पेपर नहीं है, इट्स एन ऑनलाइन पेपर, ठीक है। और यस, द लेवल ऑफ द क्वांट एंड रीजनिंग इज सिमिलर एज सी सेट, ठीक है, सिमिलर, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इज क्वाइट डिफरेंट। कि जैसे क्वांट एंड रीजनिंग में जो आरबीआई में या नबार्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप घर पे आपको मॉक्स में भी मिल जाएंगे, प्रीवियसली आपने किए होंगे। यूपीएससी में हर साल कुछ ना कुछ नया दे देंगे, पैटर्न सेम होगा, बट आपकी जो सोचने की क्षमता है वो आपकी बढ़ाती है। बट यहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ टफ, नो डाउट, है ना। एंड ऑल्सो द वन डिफरेंस इज कि सी सेट आपको पता है दैट इट इज़ क्वालिफाइंग, वेयर हेयर इट इज़ क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू आरबीआई इट इज़ नॉट क्वालिफाइंग, दैट मीन्स ये मेरिट में होगा, है ना, आपके मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। एंड देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो, सेक्शनल कट ऑफ, जस्ट टू मेंशन दैट मेरिट में तो काउंट होगा ही होगा, बट देन सपोज इफ यू आर नॉट एज गुड इन क्वांट, तो आपको बस एक मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, है ना, फॉर द क्वांट, सेम एज फॉर द रीजनिंग, ठीक है। सपोज आपका रीजनिंग अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपने वहाँ ज़्यादा स्कोर कर लिया, आप मेरिट में आ गए, बट आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ फिर भी लेके आनी पड़ेगी। बट फॉर नबार्ड, ठीक है, नबार्ड इज रिलेटिवली ईजियर, ठीक है, नबार्ड ग्रेड, अगेन वाई इट इज रिलेटिवली ईजियर बिकॉज इट इज नबार्ड ग्रेड बी, सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट, नबार्ड ग्रेड ए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव अ सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, इट मीन्स वो मेरिट में भी नहीं जाएगी, ठीक है। सो दैट इज वाई आई वॉज मोर कंफर्टेबल इन गिविंग नबार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट कि आप वो क्वांट कर नहीं सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट सिंस माय पर्सनल प्रेफरेंस वाज नबार्ड, ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है, ठीक है। व्हेन आई से सेक्शनल कट ऑफ इट मीन्स आपका मेरिट में मार्क्स काउंट नहीं होगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स का आपका क्वांट है, राइट, तो आपको यू जस्ट हैव टू गेट 3-4 मार्क्स इन रीजनिंग, यू जस्ट हैव टू गेट 3-4 मार्क्स आउट ऑफ 20 एंड इट इज ईजिली डुएबल, राइट। और सेक्शनल टाइमिंग भी होती है इन आरबीआई, नॉट इन नबार्ड। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ये होगा कि क्वांट के लिए अलग टाइम दिए देंगे, रीजनिंग के लिए 60 क्वेश्चंस होता है तो उसके लिए अलग टाइम देंगे, इंग्लिश के लिए अलग टाइमिंग होगा। दिस इज द एग्जाम पैटर्न जो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टचिंग द एग्जाम पैटर्न, वी आर मोस्टली टचिंग कि आपको किस तरीके से अपनी जर्नी डिसाइड करनी है, ठीक है। देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर टू मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हेन आई ट्रांजिटेड, राइट, ट्रांजिट नॉट द लाइक प्लैनेट एंड ऑल, ठीक है। तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कि भाई मैं तो कंसेप्चुअल वाली बंदी हूँ, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स लर्न करने पड़ रहे हैं, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, ये वो ऐसे वैसे, बट सब हो जाता है, ठीक है। यूपीएससी में भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इज जस्ट दैट कि वी आर मोर इनटू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट्स, बट यहाँ मतलब फैक्ट्स कम होते हैं, बट यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पहले बता रहे। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो अगर आप 2-3 बार कर लेते हो, उसके एमसीक्यूज कर लेते हो, देन इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है। आपकी क्रैमिंग की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कि सपोज अगर मुझे 10 चीज़ें पहले याद नहीं होती थी, अभी मेरे को 80-100 फैक्ट्स याद हो जाते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम में इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन कर ली, तो वो ईजी हो जाता है। अब ये भी एक स्ट्रगल है, अगेन आपको स्मूथ तो मिलेगी नहीं जर्नी, कुछ तो ट्रांजिशन में आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। देन इट इज़ अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑनलाइन पेपर ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑनलाइन टाइपिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पेन पेपर लेके जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, राइट, इन यूपीएससी, बट इन आरबीआई नबार्ड ऑनलाइन टाइपिंग होती है ना। आई नो इट्स लिटिल कैन बी, यू कैन से थोड़ा डिजेक्टिव फील हो रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, बट ये सच है, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन टाइपिंग होती है तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन कीबोर्ड एट योर होम। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्लो थी, बट इतने टाइम्स देने के बाद मेरी टाइपिंग अभी प्रो हो गई है, ठीक है। तो आई हैव क्रिएटेड दैट, बिकॉज देखो कुछ ना कुछ करने के लिए क्रिएट तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन टाइपिंग है, सो डेफिनेटली यू कांट मेक फ्लो चार्ट्स, यू कांट मेक डायग्राम्स, यू कैन नॉट हाईलाइट, यू कैन नॉट मेक इट बोल्ड, राइट, यू कैन नॉट डू माइंड मैप्स, तो वहाँ पे आपको बस नॉर्मल आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द टाइमलाइन रियलिटी, राइट। अब आप एक बात सोचिए कि जब हम यूपीएससी की प्रेप करते हैं, वी स्टार्ट अ प्रिपरेशन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, इनफैक्ट पूरा साल लग जाता है उस प्रोसेस को, राइट फ्रॉम योर प्रीलिम्स टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स, है ना।
देन पूरा 1 साल लग जाता है, रिजल्ट आने में 1 साल लग जाता है, ठीक है। बट हियर ऐसा नहीं है, हर 6 महीने बाद आपका जो है एग्जाम, यानी कि जस्ट साइकिल जस्ट एंड्स इन 6 मंथ्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी इस साल का देखेंगे, अक्टूबर में जो है इनका प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रीलिम्स को यहाँ पे फेज 1 बोला जाता है, ठीक है, इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड इन मार्च आपके रिजल्ट्स भी आ गए थे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स, राइट। तो यू कैन सी जस्ट इन 6 मंथ्स, राइट, आपके फिर से यहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर से अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन जून जुलाई और हाउएवर। तो द साइकिल मतलब आप बहुत जल्दी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी आप इसको एंड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट एंटायर 1 ईयर टू गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज समटाइम्स हमें जब रिजल्ट फास्ट मिलते हैं और हमें मेहनत कम महीनों के लिए करनी पड़ती है, तो वो लाइफ बिकम्स लिटिल ईजियर, ठीक है। देन yes, coming to this important, right, we have a lot many videos that discusses about the syllabus strategies on our channel CGB Mentors, है ना, by especially by our सर mentor, that is अशोक सर। तो बट फिर भी मुझे एक बेसिक सा आइडिया देना था भाई क्या सेम है क्या नहीं। सो सी व्हेन इट कम्स टू आरबीआई, राइट, वी हैव करंट अफेयर्स 6 to 8 months, ठीक है, यूजुअली 6 to 8 months होता है। बट अगर आप, है ना, रिलीजियसली 5 मंथ्स का कीजिए। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम टच की थी प्रिपरेशन की नबार्ड की, मैं 6 महीने की करी थी। फिर मैंने पूछा सर 6 महीने की करने, सर बोले नहीं, इट हैज़ टू बी जस्ट 3 to 4 months, दैट्स इट। एंड आई वाज लाइक भाई यूपीएससी के लिए मैं 10 महीने की करती थी, यहाँ पे 3-4 महीने की करने हैं, तो मैं बहुत खुश होगी। मैंने कहा वाह, तो वो मेरे लिए कितना आसान हो गया एकदम से वहाँ वहाँ लेके आना। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, अब देखो यूपीएससी में हम एक एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, बट यहाँ पे आपको फिर थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है कितना परसेंट है, दे आस्क द परसेंटेज ऑल्सो, लाइक द एमएसएफ है वो क्या होता है। थोड़ा सा आरबीआई में बहुत ज़्यादा जो फिनेंशियल चीज़ें होती है वो डेप्थ में होती है, आरबीआई के जो सर्कुलर्स होते हैं दैट कम्स इन डेप्थ, ठीक है, जो यूपीएससी में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता, बिकॉज हम ब्रॉडर परस्पेक्टिव से उस चीज़ को पढ़ते हैं। Secondly, RBI related news and reports. In UPSC, we see a very normal report, right? For example, human development index, multi-dimensional poverty index. But here the reports का जो area है वो काफ़ी broaden हो जाता है. For example, there is a financial stability report by RBI. There is a report by Niti Aayog. Then they ask the fact also about these reports. ठीक है, unlike UPSC, they ask the facts कि उस reports में हमें कितना % NPA था, ठीक है, कितना कौन फर्स्ट आया है, कौन सी स्टेट फर्स्ट आई है, ठीक है। अब डरना मत कि हम थोड़ी इतना क्रैम करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट तो देखो आपको लेना ही पड़ेगा। शुरू में ना जब आप ये क्रैम करते हैं ना तो बहुत दम लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं तो इतना कंसेप्ट में जा रही थी, ये क्या कर रही हूँ। इट टेक्स अ टॉल ऑन योर बॉडी मेंटली एंड इंटरनली, है ना, टू योर सोल। मुझे तो ऐसा हुआ और मुझे 100% पता है कि आपके साथ भी होगा। बस आपको 7-8 दिन देने हैं, उसमें कंफर्ट फील करना है, ऑटोमेटिकली 8-10 दिन बाद यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, ये गवर्नमेंट स्कीम्स जब हम यूपीएससी में करते हैं तो 3-4 स्कीम्स पूछ लेते हैं, है ना, कभी पूछते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इट इज़ वेरी वेरी डिटेल्ड। बहुत, हर मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कीम्स हमें करनी पड़ती है। डिटेल का मतलब ये हो गया कि ठीक है, हमें उसको बहुत क्रैम करना पड़ता है, उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो हम यूपीएससी में भी करते हैं। देन देयर इज जनरल अवेयरनेस पोर्शन, राइट, ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है जो हमारे फेज 1 में आता है। इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड वर्ड्स, ठीक है। तो अभी तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग, यू कैन से, कम हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सा वर्ड किसको मिला, व्हाट्स स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 1-2 देखने को मिल जाते हैं। अभी तो थोड़ा कम हो रहा है बट स्टिल पूछे जाते हैं। बट जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ये सब पोर्शन छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू दिस 20 बुक्स एंड ऑथर्स, और यू कैन से फॉर दैट मैटर 50-60, और उसमें से एक क्वेश्चन आए ना आए, तो वो तो इसको कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हैं। देन कम्स रीजनिंग, ठीक है, जो ईजी है, ठीक है, कंपेरेटिवली। पजल्स, सिलोजिज्म्स, इनइक्वालिटी, कॉर्डिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, जो हम बेसिकली ये सब करते हैं यूपीएससी में भी। क्वांट में अगेन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज यहाँ से ज़्यादा आता है। अगेन डीआई यहाँ से भी, मतलब लोग इसको टारगेट करते हैं बिकॉज 4-5-5-6 क्वेश्चन इसके बनते हैं। 2 DI आता है। रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मीन्स द सिलेबस इज डिफरेंट बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट, ठीक है। इंग्लिश में अगेन कॉम्प्रिहेंशन आएगा, है ना, स्क्रीन पे ही आएगा जो वहाँ पर भी आता है। इट्स नॉट लाइक, थोड़ा सा एनालिटिकल होता है और थोड़ा सा जो भी नॉर्मल हमारे स्कूल लेवल पे होता था, ठीक है। क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन मीन्स ग्रामेटिकली, ठीक है। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना, हमारे वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं सिर्फ, यहाँ पे जो है इस तरीके से आएगा।
हमारे वहाँ पे मीन्स यूपीएससी में, ठीक है। आरबीआई फेज 2, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? वी इन यूपीएससी वी हैव डिस्क्रिप्टिव, राइट? बट इन RBI phase 2 we have a mix of objective plus descriptive, ठीक है। then we have a English descriptive like we have essay in UPSC. so in UPSC देखो हमें essays लिखने पड़ते हैं 2, और वो भी हमारे जो है 1000 से 1200 words के होने चाहिए, right? but in RBI and NABARD, you just have to write one essay, one pressay, one comprehension. In NABARD comprehension की जगह यहाँ पे आपका letter writing आ जाता है, ठीक है। And an exam is of 100 marks, ठीक है, जिसमें आपका essay writing जो है वो 40 marks का होता है, बाकी दोनों 30-30 के होते हैं। And just imagine जहाँ पे आपको इतना content है आपके पास that आप 1200 words का लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको mostly, ठीक है, mostly 500, not 500, 550 to 600 words का लिखना होता है, बस। And that too on computer. That means you can't just make थिंग्स लाइक डायग्राम एंड ऑल, ऐसे में तो वैसे भी नहीं लिखा जाता। तो बस आपको लिखना है इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, ठीक है। प्रेस से आपका नॉर्मल 220 120 वर्ड्स 150 वर्ड्स के आसपास रहता है। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स यू हैव टू राइट, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अ पर्सन हु इज बीन हैज बीन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज वेरी इजी फॉर दैट। ओनली वन थिंग इज दैट हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन होता है वहाँ पे ग्रामर, स्पेलिंग्स वी आर नॉट यूज टू इट, वो जो है ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। नाउ देन वी हैव एन एग्जाम, है ना। हमें दो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है। वन इज ESI एंड वन इज फिनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड दोनों में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो उसमें होता क्या है दैट देयर इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद कीजिए GDP एंड ऑल हम यूपीएससी में भी करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, वी डू दैट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी डू दैट। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, LPGs, राइट, सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, देन डेमोग्राफिक, अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। सो ये सारी चीजें तो देखो हम यूपीएससी में भी करते हैं। दिस इज द समथिंग विच इज ओवरलैपिंग, बी इट ऑब्जेक्टिव, बी इट डिस्क्रिप्टिव, और आपको बहुत सारी चीजें इसमें आती होगी। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर NABARD, आई यूज्ड टू बेसिकली रेफर टू GS3 का बुक, है ना, ESI for एग्रीकल्चर स्पेशली पार्ट, ठीक है। देन फिनेंस, अब दिस इज समथिंग विच इज नॉट एज ओवरलैपिंग बिकॉज आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाती है। जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम, है ना, बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हाट इज अ बैंक, व्हाट इज एन NBFCs, कैसे वर्क करते हैं। देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इन phase 1, right? Stocks and debentures, then risk management, basics of derivatives, role of RBI in financial system, है ना, जो tiers हैं, how they manage their regulatory policies, their supervisory policies, inflation, ठीक है, Basel norms and budget, right? Then there is a concept of management अलग से, है ना, इसके अंदर, जिसमें आपका एथिक्स आ जाता है। आप एथिक्स ऑलरेडी पढ़ते हैं, बट इतना एथिक्स का सिलेबस नहीं है जितना यूपीएससी में है, ठीक है। जस्ट वेरी 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 लिमिटेड थियोरीज, ठीक है। मैनेजमेंट, अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको यहाँ पे एज मिलेगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड इसका सिलेबस है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल्स, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है ना, बहुत ही लिमिटेड पीडीएफ है हर एक चीज़ की, ठीक है। तो ये आप जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। दिस वाज द phase 2, राइट। नेक्स्ट, सो अगेन दिस इज अ थिंग कि हम यहाँ पे जो हमारे GS3 में इंडियन इकोनॉमी आती है, राइट। सो हेयर दीज आर द कॉमन टॉपिक्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, राइट। वेयर एज इन करंट अफेयर्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओवरलैपिंग, वी डू द करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, बट इन RBI एक तो हमें कम मंथ्स के करने हैं, दूसरा हमें डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज़्यादा जो है ध्यान देना है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे PIB को बहुत ज़्यादा होलिस्टिकली कवरेज करते हैं, ठीक है। सारा का सारा पेपर PIB, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, और आपके जो भी फिनेंशियल सर्कुलर्स होते हैं RBI के, ठीक है, वहाँ से जो है आपके आते हैं। देन ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। phase 2, ठीक है। सो phase 1 जनरल अवेयरनेस, phase 2 ESI एंड फिनेंस, राइट। देन social issues, as I told you previously, when we talk about society welfare schemes, these are the common topics like women, inequality, है ना, demographic structures, that is there in RBI as well. Then answer writing, as I already told you कि कैसे क्या answer writing का मैंने आपको बता दिया है कि descriptive English होता है, ठीक है। Government schemes यहाँ पे हम बहुत कम पढ़ते हैं, but ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, ठीक है। So I can say that, can I say that the 50 to 60% of the syllabus is overlapping, in which you have to just change a direction a bit, and 30 to 40% हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोर हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस अगेन, है ना, कि RBI
आरबीआई जो है वो डेप्थ में पूछती है, वेयर इज यूपीएससी क्या लिखा हुआ है ये, मच ऑन, ओके, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस पे, बेसल नॉर्म्स पे, मैनेजमेंट पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस थ्रू डिटेल्ड इन रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। वेयर एज हेयर यहाँ पे एथिक्स होता है, आपके पास ऑप्शनल होता है, देयर इज नो सच सब्जेक्ट लाइक दिस। यहाँ पे आपके कोई 12 एग्जाम नहीं होते, आपको 5-6 दिन में नहीं देना पड़ता, आपको एक दिन में 2 एग्जाम्स नहीं देने पड़ते, एक ही दिन में आपका फेज 1, एक ही दिन में आपका फेज 2 हो जाता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट 2 डे थिंग, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन चलेंगे, है ना, 3-3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नो जीएस, देयर इज नो ऑप्शनल सब्जेक्ट। सम पॉलिटिक क्वेश्चंस जो है फेज 1 में पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ठीक है। देन नाउ लेट्स कम टू नबार्ड, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यू कैन प्रेप फॉर आरबीआई एज वेल एज नबार्ड और आइदर ऑफ इट, ठीक है। तो सी वेन एवर यू सी आरबीआई का सिलेबस, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, कि मेरे लिए आरबीआई है, मेरे लिए नबार्ड है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज एंड योर कॉम्पिटिशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, मैंने पर्सनली नबार्ड को क्यों रेफर किया था, आई विल टेल यू दैट सो दैट इट माइट हेल्प यू इन टेकिंग द डिसीजन। I gave more attempts of NABARD because I was not as comfortable with the quant section, ठीक है। मुझे आरबीआई का पूरा जो है सिंस आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो मुझे कॉमर्स भी आता था, मैनेजमेंट भी आता था, नॉट कॉमर्स मैनेजमेंट। तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ क्वांट बेसिकली, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज, इट्स नॉट दैट कि आपको क्वांट आता नहीं है, इट वॉज जस्ट आई वॉज लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्पीड वेट टेस्ट। ऑनलाइन स्क्रीन में अगर 4 मिनट भी रहते हैं तो मैं वो 4 मिनट यूटिलाइज ही नहीं कर पाती थी, बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी कि 4 मिनट में तो मैं क्या ही क्वांट का क्वेश्चन निकालूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज इफ यू हैव द सेम फियर, देन नबार्ड इज फॉर यू डेफिनेटली। वाई, आई टेल यू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती है जो आरबीआई में होती है, ठीक है। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ता है, राइट। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्वांट को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना जाना है। सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता स्क्रीन पे, होलिस्टिक एक टाइम दे दिया जाएगा आपको, किसको कितना टाइम देना है। मैं क्वांट को ज़्यादा टाइम देती थी क्योंकि ये बहुत स्पीडली हो जाता था, ठीक है। एंड देयर इज मेरिट कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है, आरबीआई में मेरिट कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ है तो मतलब मुझे 2-3 नंबर ही लाने हैं हर चीज़ में एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर नबार्ड इफ यू थिंक भी मेरे से तो सी सेट ही नहीं निकल रहा, मैं आरबीआई का कैसे करूंगी, ये करूंगा, देन नबार्ड इज फॉर यू। अब नबार्ड इज रिलेटिवली ईजियर, ठीक है, देन आरबीआई। व्हाई, इट डिपेंड्स अपॉन, आई कांट से ईजियर, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। नाउ अगेन इट हैज़ ईएसआई ऑल्सो, ईएसआई एज हमने आरबीआई में पढ़ा, ठीक है, सेम चीज़ है, आप पढ़ सकते हो, इट हैज़ ईएसआई, ठीक है। देन इट इज हैज़ एआरडी, ठीक है, इट हैज़ एआरडी। नाउ इन एआरडी रूरल डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, अगेन वी रीड रूरल डेवलपमेंट इन यूपीएससी। द ओनली डिफरेंस हेयर इज ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे आरबीआई में इट वाज फाइनेंस, इट वाज मैनेजमेंट, है ना, कोर रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर आपको पढ़ना पड़ता है। अब देखो इतने सारे एग्जाम्स दे दिए ना, तो बस अब हमने फिर सोचा कि भाई यही क्या ही चीज़ है, पढ़ लेंगे, कोई नहीं, सह लेंगे ये भी, ठीक है। मैंने से भी दिया, फिर मैंने फाइनेंस, मार्केट्स, और हालांकि इट वाज ओवरलैपिंग विद माय कॉमर्स के सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पढ़ लिया, फिर ये एग्जाम दिया तो चलो एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया। भाई एग्जाम्स देने लगे तो कुछ पता नहीं कितना कुछ पढ़ लिया। तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें तो देखो आप पढ़ते ही हो। फॉर एग्जाम्पल आर जोग्राफिकल, जो भी हमारे सोयल होता है, द टाइप ऑफ सोयल्स, द क्लाइमेटिक रीजन्स, देन वी रीड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, राबी, खारिफ एंड जाइद। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। देन इट इज़ लिटिल बिट ऑफ एग्रोनॉमी, इरीगेशन, हम माइक्रो इरीगेशन भी पढ़ते हैं, सोयल साइंस, सीड्स, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल आ जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीड्स, बहुत छोटा चैप्टर होता है। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब बेसिकली द टाइप ऑफ ब्रीड्स ऑफ बफलो एंड कैटल एंड एवरीथिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बट आई विल टेल यू, अगर आपने GS3 की प्रिपरेशन की है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्शन, देन दिस इज फॉर द डिस्क्रिप्टिव, दिस इज नथिंग फॉर यू। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट डिस्क्रिप्टिव यू हैव सच अ फोर्टे इन दैट, नॉट फोर्टे, यू हैव सच एडवांटेज फॉर दैट कि आपका ऑलरेडी रेडी होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है ना, एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होते हैं, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, यू ऑलरेडी हैव इट। देन रूरल डेवलपमेंट में रूरल क्रेडिट सिस्टम्स, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये सारी चीज़ें आपका रूरल डेवलपमेंट में आ जाता है। फिर इंग्लिश मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस अभी क्या होता है कि जो फेज 1 आता है, तो एज अ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, देन यू हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर एग्रीकल्चर एंड ESI। बट व्हेन इट कम्स टू द फेज 2, यू गेट द सेम थिंग, राइट, यू गेट ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव बोथ। कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के आएंगे फॉर बोथ सब्जेक्ट,
बेसिकली द सिलेबस इज सेम एंड यू गेट द इंग्लिश, एक दिन में हो जाता है, रफा दफा हो जाता है, सेम, ठीक है। देन अगेन ये हम कर सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसको, सेम फाउंडेशन बस रूरल एरिया पे है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस होता है, सोशल इश्यूज जो है वो सेम होते हैं, करंट अफेयर्स अगेन आप सेम करते हो, बट इसमें क्या होता है कि क्या करना है वो मैटर करता है, कि जितना करना है वो वही करना है, बट कैसे करना है वो मैटर करता है, कि ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा रिपोर्ट्स, ज़्यादा फिगर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सेम 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 चीज़ है कि चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, ऑप्शनल एथिक्स एथिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेयर एज इन दिस यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट रूरल क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, नबार्ड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा ये नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो व्हाट इज नबार्ड, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगी। So I hope I am able to help you, I'm able to guide you, because in this journey it is very, very important to find a plan B. And we never say that make this as a plan A, but sometimes people make RBI NABARD as plan A and then UPSC plan B because it is so uncertain. ठीक है, doesn't mean कि RBI NABARD भी uncertain नहीं है, it's just that कि your chances or your bandwidth increases, right? Because you already know it, you just need to shift your direction first of all, एंड सेकेंडली वी जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू एंड वी जस्ट वॉन्ट टू गाइड यू, ठीक है, तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। And for more videos, whether it's about exam patterns, syllabus and strategies, there are hell number of videos on our channel, you can watch it, ठीक है, you can contact us, you can email us, है ना, we are eager to help you. And yes, if you want to just see a practical video on it, कि ये तो सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं, then there will be a podcast, ठीक है, releasing soon on the same channel, है ना। That podcast is all about that there was a person who has just been selected in RBI, है ना, and he was basically an aspirant of UPSC, has given several attempts. Besides that, he started for RBI, he started for NABARD as well, and many exams like SEBI and PFRDA. So it is a very detailed podcast, and where you can relate with him, you can relate with his questions and answers, right? And वो आपको बहुत help करेगा that why I'm saying or why I brought up this video. And you really need to have that practical approach, right, in the same scenario. So I hope I did well. So thank you so much for watching us, ठीक है, thank you so much, keep growing.